जूम रिव्यू शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओमर कुरैशी और इस हफ्ते फिर लाया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मूवीज। तो कौन से नए रिलीज हैं सिनेमाज में एंड विच वन शुड यू बी पुटिंग योर मनी ऑन, मैं बताऊंगा। सो सिट बैक एंड रिलैक्स और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। आज के शो में आप देखेंगे शैतान फिल्म का रिव्यू। ये थ्रिलर है फुल ऑफ यंग एक्टर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। और इसके साथ फॉरेन प्रोडक्शन वेस्ट इज वेस्ट स्टारिंग देसी स्टार ओमपुरी आपका इंतजार सिनेमाज में कर रही है। हॉलीवुड की ओर से है द लेटेस्ट इन द पॉपुलर सीरीज X-Men. Take a look at X-Men First Class. Also on the show today, I'm going to be reviewing the latest song from Zindagi Na Milegi Dobara, and on OQSpix find out the best debut directors from 2010. तो शुरुआत करते हैं राजीव खंडेलवाल और कल्कि कोएचलिन स्टारर शैतान के रिव्यू के साथ। सबके अंदर एक शैतान होता है, as long as it stays dormant तो ठीक है, but what happens when you allow it to run free? The result is what शैतान is all about. शैतान कहानी है 5 ऐसे यंगस्टर्स की जिनके लिए life is all about going wild and having crazy over the top fun. Amy, Dash, Casey, Zubin and Tanya are young, intelligent and good looking. Drugs, sex, booze और parties ही इनकी जिंदगी है and they rebel against all the rules. एक रात while drinking and fast driving they hit and kill 2 men. और फिर अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से भागते हुए they face a series of incidents across the roads, streets and deepest bylanes of Mumbai that forces them to face the inner shaitan, one that keeps them do more and more evil. आमिर में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने के बाद टीवी हॉटी राजीव खंडेलवाल is back with Shaitan and he does not disappoint at all. He plays a messed up honest cop Arvind Mathur who has the unenviable job of finding the 5 youngsters simultaneously handling a troubled marriage because of his messed up mind. He is intense and sincere and his performance is perhaps the USP of the movie. Everything from his expressions to his dialogue delivery is very good. Girls, go watch it for Rajiv. Kalki plays a psychotic, disturbed and stubborn teenager who hasn't gotten over her mom's death and the trauma of her mom trying to kill her. She wants to lead a wild life and she manages to do so with her 4 new friends. Kalki को maximum screen time दिया गया है and she also gets the best lines. She's at best competent but has no new shade to offer her character apart from making scary faces and playing with scary stuffed toys. Kalki looks every bit the crazy stoned chick that she plays. For that she gets full marks. Shiv Pandit plays Dushyant in Shaitan. ये गैंग का लीडर है and he's the one who comes up with all the crazy plans. सभी एक्टर्स में शिव का रोल is better fleshed out and he takes advantage of that. He is intense and does a good job. He also looks very good and very fit. कीर्ति को हमने पहले खिचड़ी द मूवी में देखा था and her role in Shaitan could not have been more different. She plays Tanya, the misfit in the gang, the confused, poor, lost girl who's unwittingly dragged into the whole mess. Kirti does a very good job and expresses her angst very well. She also looks very good and is very convincing in her role. Neil plays Zubin, a geek and a video game freak. Among this pack of wild, crazy youngsters, Zubin is the sanest and backs out first from the crazy plans. Neil ने अच्छा काम किया है and he's quite entertaining. Apart from being funny, he also does a decent job as a scared, vulnerable youngster. Gulshan plays the role of Casey, the rich, spoiled brat who's wild and crazy and almost always horny. Gulshan has done a decent job as the confused and disturbed youngster. He looks and acts the part and does as much as he's asked to well. Bijoy Nambiar ने इससे पहले काफी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं and he's also assisted Mani Ratnam in Ravan and Guru and he does an excellent job in his directorial debut. इस फिल्म की खासियत है इसका superb direction. The camera work is fabulous और काफी interesting shots use किए हुए हैं, especially the point of view shots and the 360-degree shots. The underwater sequence and the fight and chase sequences are also very well shot. मुंबई को भी डायरेक्टर ने काफी realistically capture किया है. The editing is slick and stylized. However, story confusing है और काफ़ी loopholes भी हैं. स्क्रिप्ट में potential तो काफ़ी था, but it hasn't been executed well enough. फिल्म में रजत बर्मेचा को भी 2 मिनट का गेस्ट अपीयरेंस दिया गया है and his entire sequence is funny and well done. Bijoy makes a good debut as director. शैतान का म्यूजिक दिया है प्रशांत पिल्ले, रंजीत बैरट, अनुपम रॉय और अमर मोहिले ने. म्यूजिक मूवी की ही तरह यंग और स्टाइलाइज्ड है विद एक्सपेरिमेंटल साउंड्स एंड बीट्स. द म्यूजिक ब्लेंड्स इन विद द कैकोफोनी ऑफ द बैकग्राउंड स्कोर. गाने काफी डिफरेंट हैं एंड दैट वर्क्स. खोया खोया चांद का अडेप्टेशन इस एल्बम की खासियत है एंड द वे इट इज शॉट इज ऑल्सो एक्सेप्शनल. नशा भी काफी अच्छा गाना है विद सम गुड बीट्स. ओवरऑल म्यूजिक अच्छा है बट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली गेट टू हियर. ये था मेरा रिव्यू शैतान पर. बट टू नो हाउ मेनी स्टार्स आई एम गोइंग टू गिव दिस मूवी, लौट आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद.
द जूम रिव्यू शो में फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैं आपको दे रहा था मेरा रिव्यू ऑन द जूम रिव्यू शो और अब जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड ये रहा मेरा वर्डिक्ट ऑन शैतान। Shaitan has too much going on at the same time. It's racy and fast-paced, but tends to become confusing. 3 real life incidents को लेके बनाई गई ये मूवी किसी को भी fully justify नहीं कर पाती. The plots are not etched out well, and too many things are left totally to the imagination. काश स्टोरी में भी इतना ही ध्यान दिया होता जितना कि कैमरा और एडिटिंग में. This movie is technically very good, but loses out on the story and script. It is also dark, bloody, and gory. It may appeal to some pockets of the Facebook generation, but this one is not for the masses. I certainly expected more from the story. I go with 2.5 stars for Shaitan. This monsoon, you can also wade through Om Puri's East-West fusion in West is West. वेस्ट इज वेस्ट को डायरेक्ट किया है एंडी डियोमोनी ने। 70s एरा का पाकिस्तान और लोगों का रहन सहन बहुत रियलिस्टिकली दिखाया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कहना पड़ेगा कि एवरीवन हैज एक्टेड वेल। ओमपुरी का काम बढ़िया है और उन्होंने अपना कैरेक्टर की एक्सेंट और मैनरिज्म्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। आकिब खान हु प्लेज द रोल ऑफ साजिद इज ऑल्सो वेरी गुड एज अ इरिटेटिंग किड। फिल्म में काफी टेंडर मोमेंट्स हैं विद अ लिबरल डोज ऑफ ब्रिटिश ह्यूमर, बट इट गेट्स प्रिडिक्टेबल एंड टू सिंपलिस्टिक। वेस्ट इज वेस्ट को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स। और हॉलीवुड की ओर से है एक्समैन फर्स्ट क्लास, बोरोड फ्रॉम द पॉपुलर एक्समैन कॉमिक बुक्स। काफी समय से मैंने एक्समैन फर्स्ट क्लास जैसी कॉमिक बुक मूवी नहीं देखी। फिल्म लाजवाब है। कास्टिंग, एक्टिंग, स्टोरी, एक्शन, इफेक्ट्स, सभी डिपार्टमेंट में फिल्म है फर्स्ट क्लास। दिस वंस थरोली एंटरटेनिंग, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सीरीज। इस वीकेंड के लिए मैं ये फिल्म जरूर रेकमेंड करूंगा। एक्समैन फर्स्ट क्लास को मैं देता हूं 4 स्टार्स। और अब जूम रिव्यू शो पर सिर्फ आपके लिए हमने एक स्पेशल सेगमेंट शुरू किया है, OQ's Picks, यानी मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड 5 फिल्म्स यू मस्ट कैच ओवर द वीकेंड। और क्योंकि ये है डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स का वीकेंड, OQ's Picks में मैं रेकमेंड करता हूं मेरे 5 फेवरेट डायरेक्टोरियल डेब्यूज ऑफ 2010. 2010 introduced us to some really brilliant directors who gave us refreshing cinema. नंबर 5 पे है जर्नलिस्ट टर्न डायरेक्टर अनुषा रिजवी की फिल्म पीपली लाइव। पिक्चर इतनी अच्छी थी that it was India's official entry to the Oscars. प्रोड्यूसर आमिर खान के नाम के अलावा द फिल्म had no star power attached to it, लेकिन डायरेक्टर ने डार्क ह्यूमर के द्वारा मीडिया की इतनी अच्छी पोर्ट्रेयल की है that I couldn't help but fall in love with the film. नंबर 4 पे है पहली इंडियन फिल्म टू compete as a Cannes official selection in 7 years. उड़ान डायरेक्टेड बाय डेब्यूटेंट विक्रमादित्य मोटवाने ने हमें ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस और एक हार्टनिंग स्टोरी दी। 2011 Filmfare Awards में उड़ान bagged 7 black ladies, more than any other film that year. This one's a must watch. नंबर 3 पे है वो फिल्म जिसने हमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस और बेहतरीन म्यूजिक दिया। In fact, it brought out the raw and repressed sexuality of rural India. इश्किया was a refreshingly entertaining film made by first-time director अभिषेक चौबे। नंबर 2 पर है बैंड बाजा बारात। यशराज ने काफी रिस्क लेकर न्यू कमर रणवीर सिंह और नए डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ ये फिल्म बनाई एंड इट इंस्टेंटली क्लिक्ड विद द मासेस। दिल्ली के कल्चर को पूरे इंडिया के सामने इस तरह पेश किया कि बस मजा आ गया। और रणवीर और अनुष्का की केमिस्ट्री वाज द आइसिंग ऑन द केक। तो क्या आप बेकरार हैं OQ's नंबर 1 पिक ऑफ द वीक जानने के लिए? ऑफ कोर्स, इट्स द स्मैश हिट ऑफ 2010, सलमान खान्स दबंग। First time director Abhinav Kashyap made superstar Salman Khan deliver to his full potential. Action, comedy, music, romance, सभी एरियाज में फिल्म थी स्पॉट ऑन। फॉर्मूला फिल्म्स को दबंग ने परफेक्टली रीइन्वेंट किया और मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के बीच का डिवाइड को कर दिया द एंड। ये थे OQ's Picks of the Week। अब वक्त है इस हफ्ते के फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। First up is a song from Zoya Akhtar's much awaited film जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये गाना काफी धूम मचाने वाला है। The song Señorita has Spanish music, लेकिन गाने के बोल हिंदी में हैं। बट इस गाने की खासियत यह है कि फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल ने खुद अपनी आवाजों में इसे गाया है। The lyrics are simple, the music is catchy, and the 3 dudes are doing the tap dance. स्पेन में शूट किया यह गाना has local flavor and makes for good viewing and listening. अब वक्त है दूसरे फ्रेश गाने के रिव्यू का। The cult hit film Bheja Fry had no songs, but the sequel Bheja Fry 2 does.
इस फिल्म का गाना ओ राही फिल्माया गया है विनय पाठक पर और उन्होंने इसे गाया भी है। द सॉन्ग इज कम्प्लीटली रेट्रो इन लुक एंड लिरिक्स। इट रिमाइंड्स यू ऑफ द डेज ऑफ द ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी। गाने को बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है और एडिट भी अच्छी तरह से किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाने की अपील यहीं तक सीमित है। Although Vinay is funny and the song seems situational, as a standalone song, it does not work entirely. आपको मिल गए हैं मेरे रेटिंग्स ऑन द लेटेस्ट मूवीज एंड म्यूजिक, और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है नई रिलीजों पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद। द जूम रिव्यू शो में फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। अब वक्त है ऑडियंस के वर्डिक्ट का, स्ट्रेट फ्रॉम द सिनेमास। Something different, yeah. Very good, very good. Excellent, excellent. Fantastic, right? Super movie. Yeah, it was awesome. Anurag Kashyap rocks. I like the film. Excellent, excellent. What a movie. The movie is okay. Rajiv Khandelwal rocks. और अब वक्त है एक क्विक रिकैप का मेरे इस हफ्ते की रेटिंग्स पर। शैतान को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, वेस्ट इज वेस्ट को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और एक्स-मैन फर्स्ट क्लास को मैंने दिए 4 स्टार्स। एंड नाउ अ कंपैरिजन ऑफ हाउ द व्यूअर्स एंड आई रेटेड लास्ट वीक्स फिल्म्स। मैंने सलमान खान के रेडी को दिए 3 स्टार्स, आपने भी दिए 3 स्टार्स। आप मुझे अपने रेटिंग्स भेजते रहिए facebook.com/zoomtv पर। तो दोस्तों, मैंने आपकी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल बना दी है, बट टेलिंग यू जस्ट वेयर टू पुट योर मनी दिस वीकेंड। आप इंजॉय कीजिए और याद रखिए, यू विल गेट योर फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। अगले हफ्ते लौट आइए इसी वक्त इसी समय सिर्फ द Zoom रिव्यू शो पर for the latest movie reviews. This is Omar Qureshi signing off. Bye bye and God bless.